कि भाई मैं जाकर खाऊंगी क्या। I was like बेटा 2 मिनट दूरी में लेना। I'm someone who is so bad with Google Maps. My flatmates, angels, उनको कौन बताया कि भाई वो 2 मिनट नहीं, वो 2 से 3 घंटे की दूरी पे था। Hi everyone, welcome to my channel, and today marks the beginning of a new series that is very close to my heart. So this will be all about my internship experience in Germany. So this is what I will be covering in my series. Firstly, how I got this internship, how I got the DAD scholarship plus all my visa processes, how I managed to survive in that foreign culture, what are lessons I learned, and also, most importantly, all the mistakes that I did so you don't have to do it. Now, in today's video, we would be discussing some challenges that I faced during my journey. So, let's start. So, challenge number one that I faced, food. So, I'm a vegetarian, right? And to survive as a vegetarian abroad is a challenge in itself. Those who are vegetarian and watching this video, I think you guys can feel me. Throughout my journey, I was not thinking कि भाई मैं अपने माँ बाप को कैसे कॉल करूंगी. I was not thinking कि मैं मेरे को कोई लेने आएगा या नहीं आएगा. I was not thinking कि भाई मैं अपने घर तक कैसे पहुंचूंगी. Not worrying about all of these things, right? The only thing I was worrying about कि भाई मैं जाकर खाऊंगी क्या. But trust me, my flatmates, angels, they like when I entered, right, in my flat, so they were like, hi Kurbani, and we have prepared the dinner whatever we could, and you just take your dinner, freshen up, and just take a good sleep. I was like, भाई कितने प्यारे लोग हैं. But okay, हाँ मेरे flatmates Indians थे, तो yes, that was a benefit for me. बट ऑब्वियसली वो मुझे हर दिन नहीं खिलाने वाले थे. तो द मेजर चैलेंज दैट आई फेस वाज फूड. आई वाज लाइक कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ एंड इफ आई एम ट्रैवलिंग समवेयर आउटसाइड, आई कांट फाइंड एनी good vegetarian food that I can buy and eat. Like I need not to prepare. So if you guys don't know cooking, it's a red flag for you guys, because भाई अगर तुम वेजिटेरियन हो और अगर तुम ये सोचो कि तुम अब्रॉड में हर दिन बाहर का खा के, या अगर तुम 2 महीने की इंटर्नशिप पे जा रहे हो, 3 महीने के लिए जा रहे हो, जितने भी दिन के लिए जा रहे हो, एंड इफ यू थिंक कि यू कैन ईट फ्रॉम आउटसाइड एंड सर्वाइव, नो यू कांट. ट्रस्ट मी. पहली बात तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है. दूसरी बात कि तुम्हें अच्छा वेजिटेरियन फूड बाहर मिलेगा ही नहीं. हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं, बट अगेन वो बहुत कॉस्टली होते हैं. सो या, फूड वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर मी. तो वॉट आई यूज टू डू वॉज लाइक, ऑब्वियसली 2 सूटकेस लेके गई थी, एंड उसमें से एक सूटकेस वॉज फुल ऑफ इंडियन फूड्स, राइट. तो ऐसा था कि मेरा वो पैक्ड आइटम्स कम से कम 15-20 दिन चला था, राइट. तो मेरे लिए वो उतनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. बट मैं 15-20 दिन तक सिर्फ पोहा, उपमा एंड नमकीन वगैरह खा के नहीं रह सकती थी. तो I started cooking. I tried cooking. Like I knew how to cook, but रोटी वगैरह, आटा वाटा ये सब नहीं आता था, राइट. सो कुछ दिन मैंने मैगी में सर्वाइव किया, कुछ दिन मैंने जूस में सर्वाइव किया, कुछ दिन मैंने राइस, पोटैटोज, पनीर. अगेन वो वहाँ पे बहुत कॉस्टली है. इफ यू गाइस कैन अफोर्ड गुड. बट अगर आप एज इंटर्नशिप जा रहे हो, इफ यू आर प्लानिंग कि आप उतने ही पैसों में खुद के लिए सर्वाइव करो, देन वहाँ पे चीजें काफी महंगी हैं, राइट. वेजिटेरियन फूड स्पेसिफिकली महंगा. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, देन आपके लिए इतनी दिक्कत नहीं है. या, सो you need to manage out ki how you are managing your food and everything. Now, challenge number 2. So the second challenge for me was traveling. Okay. So I am someone who is so bad with Google Maps. Like I can't even see maps even in my own hometown. And I was expected to take different buses, trams, train, and everything, seeing no, the Google Maps and everything. I can't, right? So traveling, but I should say that traveling is a sorted thing. It was a challenge for me, but it's a very sorted thing in Germany because of Deutschland ticket. I would prepare a separate video regarding Deutschland ticket and everything. So the best thing about Germany was the Deutschland ticket, right? So it made traveling easier for me, and specifically for me, why I would tell you guys. I got my accommodation in New Isenberg, and my office work was in Mainz. Two completely different cities.
So I used to travel for 2 to 3 hours from my accommodation to my office place. Like I need to take first I need to take a bus, right? Then I need to take a tram, then I need to take a train, and then I need to again take a bus, and then I used to reach to my office place. Trust me, when like if you ever talk to someone who is living in Germany for a long time, you would listen that the traveling system is a superb thing and the most convenient thing in Germany. Like this, I think this is the reason why I love Germany so much because of the traveling system. This was a challenge for me because I am so bad with Google Maps. Again, a second red flag. If you guys are, not good with Google Maps and you guys don't know how to locate locations and be accurate regarding it, then it's a problem for you guys. Um, प्लीज अगर आप कभी भी इंटर्नशिप करने का सोच रहे हैं जर्मनी में या कहीं पे भी अब्रॉड या बाहर, तो प्लीज गूगल मैप्स एंड ये इस पे थोड़ा और वर्क ऑन कर लेना. बट हाँ, दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी बिकॉज मैं मैप देखने में बहुत बेकार हूँ, बहुत ज्यादा. That was a second challenge for me, and I think it was a challenge for me also because I was living in two different cities. Like accommodation and workplace were in two different cities. So again, this is one thing for you guys to note down, that कि always try कि अपना accommodation and जो आपका ऑफिस प्लेस है वो थोड़ा आसपास ही हो. बट हाँ, बाहर आपको फ्लैट्स एंड जगह मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है. एंड उस टाइम पे, जिस टाइम पे आई वाज गोइंग फॉर इंटर्नशिप, उस टाइम पे थोड़े क्राइसिस भी चल रहे थे अकोमोडेशन के वहां पे. तो आई फेस दिस इशू, इसीलिए मुझे दो अलग अलग जगह लेना पड़ा. आई डेंट इवन इन्फॉर्म माई फैमिली. माई फादर वाज लाइक, बेटा 2 मिनट दूरी में लेना. एंड उनको कौन बताया कि भाई वो 2 से 3 घंटे की दूरी पे था. बट या फाइन. सो challenge number 3 is language barriers, right? So when I was going to Germany, like मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि लैंग्वेज के इश्यूज आ सकते हैं एंड कि वहाँ पे ज्यादातर लोग जर्मन लैंग्वेज ही बोलते हैं एंड इंग्लिश नहीं बोलते हैं, राइट? सो आई वुड से कि लैंग्वेज बैरियर मेरे लिए इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं था बिकॉज माई ऑफिस प्लेस इट वॉज सो वार्म एंड वेलकमिंग. लाइक मेरे जितने भी कलीग्स थे, दे नॉर्मली यूज टू स्पीक इंग्लिश ओनली वाइल ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड एवरी टाइम, राइट? हाँ, like obviously there was a challenge with language when I was solo traveling, when I was alone, when I was looking for different stations and everything कि भाई वो नाम पढ़ने में ही. एंड ज्यादातर ट्राम स्टेशन में ऑब्वियसली दोनों लैंग्वेज में लिखकर आता था, जर्मन एंड इंग्लिश, बट कुछ कुछ जगह ऐसा भी था कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में लिखकर आ रहा था. सो दैट वाज अ इशू फॉर मी. And the second thing was कि whenever I used to go to any grocery shop for shopping and everything, तो वहाँ पे ज्यादातर जितने भी फूड आइटम्स है उनका था वो सब जर्मनी में ही लिखा होता था. एंड बट ऑब्वियसली इन टुडेज टाइम आई थिंक कि आप गूगल ट्रांसलेटर एंड ये सब यूज करके बहुत इजीली इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, राइट? सो it's a challenging path, but it's also not that much challenging, right? Other than that, I would say that Germany was so welcoming and so safe. I felt that it was so safe. I used to travel late in nights, right? कई बार ऐसा भी हुआ है कि रात में 2-3 बजे मैं अकेले ट्रैवल करके आ रही हूँ. सो ट्रैवलिंग सिस्टम तो आई टोल्ड यू कि ड्यूसलैंड टिकट की वजह से इट वाज सॉर्टेड. रात में भी इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव सेफ्टी इश्यूज और एनीथिंग. बहुत ही ज्यादा सेफ एंड अच्छा इन्वायरमेंट था वहाँ का. एनी टाइम, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग इन एनी ट्रेन स्टेशन और एनी टाइम एंड इफ आई एम कंफ्यूज कि विच ट्रेन आई नीड टू टेक और विच लोकेशन और एनीथिंग, तो मैं किसी से हेल्प मांगू ना मांगू, वहां के लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं कि हे डू यू हैव एनी. वो अगर मुझे नर्वस देखते थे या वो देखते थे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं मेरे पास कि हे डू यू नीड एनी हेल्प, इज देयर एनी इशू और समथिंग. एंड they were so, like, the whole atmosphere and environment of Germany was so welcoming, so charming and बहुत ही ज्यादा अच्छा था. So I feel कि language barrier आपको इतना नहीं आएगा. Obviously आएगा. मैं जब जर्मनी गई थी तो आई लर्न बेसिक लेवल, बहुत ही बेसिक कि थोड़ा बहुत. एंड उसके अलावा कि अगर कभी आप
गूगल ट्रांसलेट है, कुछ देख रहे हो तो आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही ब्लैंक है अगर आप किसी नई कंट्री में जा रहे हो इस लैंग्वेज को लेकर। सो दिस इज अ पॉइंट कि हाँ, अगर इफ यू आर गोइंग टू एनी अब्रॉड कंट्री एंड अगर वहाँ पे जैसे कोई डिफरेंट लैंग्वेज है, जैसे जर्मनी में जर्मन है, स्पेन में स्पेनिश का है, तो यू गाइज शुड हैव अ बेसिक नॉलेज, लाइक बहुत बेसिक भी चलेगा। एंड अगर आती है वो लैंग्वेज देन तो इट्स ऑब्वियसली अ प्लस पॉइंट। बट येस, जर्मनी में इतना ज्यादा लैंग्वेज बैरियर मेरे को नहीं लगा। बट या थोड़ा बहुत ग्रोसरी उधर रहता है जो कि आप बहुत इजीली गूगल ट्रांसलेट या किसी से सॉल्व डाउन कर सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ दिस वीडियो हेल्प यू गाइज इन एनी वेज, प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब. New land, new rules, but the lessons are wow. This is Talk Horse signing off for now. See you in the next video. Bye bye.